Good evening, dear students. I am Mohit Nigam. Today I am going to discuss the topic on analysis of binary distillation in tray towers using McCarthy method. यहाँ हम लोग ये पता करेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं with the help of McCarthy method. First of all, we will discuss about the fractionating column. जैसे कि आप लोग इस कॉलम में देख सकते हैं, दिस इज द fractionating column shown in the figure. What is the meaning of distillation? As in the previous we know, distillation can be defined as separation of more volatile component from the mixture of less and more volatile component into its component fraction of the desired purity by the application and removal of heat, and this process take place in a simple fractionating column as shown in the figure. This distillation column comprises mainly three parts, as the part where the feed undergoes at some part of the tower, and the portion above the feed plate is known as a rectifying section, and the portion below the feed tray is known as a stripping section. The above portion of the feed tray is also known as a enriching section, as this portion is enriched in a more volatile component. जैसा कि ये हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ चुके हैं कि हमारा जो फीड है, फीड आपका डिस्टिलेशन कॉलम में किसी सम पार्ट ऑफ द टावर में एंटर करता है. फीड के ट्रे के सेक्शन का ऊपर का जो पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज ए रेक्टिफाइंग सेक्शन और एनरिचिंग सेक्शन, एंड द पोर्शन बिलो द फीड ट्रे इज नोन एज ए स्ट्रिपिंग सेक्शन. ऊपर वाले सेक्शन को फीड ट्रे के आप रेक्टिफाइंग सेक्शन कहते हैं या एनरिचिंग सेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट में आपका इनरिच होता है. अब जब आपकी फीड आपकी कॉलम में एंटर करी, ठीक है, फीड एंटर करने के बाद डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द फीड द वेपर गोज अप टू द कॉलम. वेपर यहां से क्या होता है, जो आपकी कॉलम में ट्रेस से होते हुए ऊपर की तरफ मूव करती है. देन दिस वेपर्स गोज इनटू द कंडेंसर, एंड द कंडेंसर में बी द पार्शियल, में बी द टोटल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. This will be discussed on the later sides. जब कंडेंसर में जाने के बाद ये वेपर कंडेंस होकर के एक ड्रम में कलेक्ट कर लेते हैं. दैट ड्रम और द कलेक्टर इज नोन आल्सो नोन एज ए रिफ्लेक्स ड्रम, एंड some part of this is goes returned back to the column, that is known as a reflux, and the other part is collected as a top product. This is known as a distillate, and the portion of the top product that is returned back to the column is known as a reflux. Then reflux goes down to the column and the vapor goes up to the column, and these will interact on the tray, and then more volatile component transferred from the liquid to the vapor, so that it will be the enriched in the upper part of the distillation column. Then the liquid goes down to the column and it goes into the reboiler, where it will be the partially vaporizes and the vapor will enter into the distillation column again, and so on the distillation process take place, and the bottom will be the rich in the less volatile component and the top will be the rich in the more volatile component. This column में आप फीड यहाँ से एंटर करते हैं. दिस इज द फीड. फीड का कंपोजिशन में आप डिनोट करते हो, इट कैन बी द XW. This is the composition of the more volatile component. F is the flow rate of the feed, and the portion which is the top product, here you represent D comma XD. D is the flow rate of the top, and the XD is the composition of the more volatile component at the top product. Similarly, at the bottom you will see that W comma XW.
W is the flow rate at the bottom and XW is the composition of the more volatile component at the bottom. यहां पर आपको ये तीन चीजें आपको मिल जाती हैं, 3 पार्ट्स आपको मिलते हैं, F, D and W. F is the flow rate of the feed, D is the flow rate of the distillate, W is the flow rate of the bottom product. Similarly, यहाँ पर XD is the composition of the more volatile component in distillate. XF is the, you can see, this is the XF. You may represent the feed composition by the XF, and the bottom composition is the represented by the XW. Note down this is the XF, not the XW. This is the representation which we will follow in our further calculations also. Okay. इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम को हमको डिजाइन करना होता है, तो इसको डिजाइन करने के लिए जो एक बेसिकली नंबर ऑफ 2 मेथड्स जो है अवेलेबल हैं, जैसे कि मैकआप-थेले मेथड और पंचन-सेवेट मेथड. इस स्लाइड्स में, इस लेक्चर में हम लोग मैकआप-थेले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैकआप-थेले मेथड की हेल्प से नंबर ऑफ ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये बहुत ही कंसाइज लिए हमने इसमें एक्सप्लेन किया है और क्लियर एक्सप्लेन किया है. इसको अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर जो है आप पूछिएगा. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मैकआप-थेले मेथड. मैकआप-थेले मेथड इज द मेथड टू फाइंड आउट द required number of ideal stages in a distillation column. This is a graphical tool, graphical technique which is used to find the required number of ideal stages in a distillation column. यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं. बिफोर गोइंग टू द steps we must know some assumptions of the मैकआप-थेले मेथड. मैकआप-थेले मेथड में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो हमारा रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन में रहता है. ऐसा इसलिए एज्यूम करते हैं ताकि ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन फाइंड बने. ठीक ना. सिमिलरली वी एज्यूम आल्सो द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द column. We also assume the equilibrium between phases. It means the vapor and liquid that leaves the column are in the equilibrium phase. As you know, this is the L, this is the L dash, this will be the V, this will be the V dash. We assume L is equal to L dash, comma V is equal to V dash for solving the मैकआप-थेले method. We also assume the relative volatility is constant throughout the column. We also assume, मैकआप-थेले assumes that the leaves stream the tray. जो लीव आपकी ट्रे को लीव करती हैं, जो ट्रे हमारी यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, these are in the equilibrium. ठीक ना. Those are the leaf trays, the composition leaving the trays are in the equilibrium. The McCarthy also assumes that the column is in the adiabatic operation. Adiabatic operation means no heat transfer take place from the column to the surrounding or surrounding to the column, and also assumes the negligible pressure drop throughout the column. These are the basic assumptions of the मैकआप-थेले method, and whenever it is asked in an examination, this is very much important that you have to write down the assumptions of the मैकआप-थेले method to securing the maximum marks, the full marks in the your examination. Now the steps. First of all,
आपको प्रॉब्लम जो गिवन होगी कंडीशन में, आपको इन जनरल फीड का फ्लो रेट दिया होगा, फीड की कंडीशन आपको गिवन होगी और आपको फीड का कंपोजिशन दिया होगा कि इस कंपोजिशन की हमारे पास फीड है और इसको आपको अचीव करना है, इतना प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव टू अचीव, दिस इज द you have you to given the feed flow rate and the composition of the more volatile component present in the feed and the quality of the feed is also present. What is the Q? Q represent the amount of the liquid present in the feed, जैसा कि इसको हम लोग पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. And whatever you want to achieve the XD composition. It may be the 99.9% you once wish to achieve. This is the problem statement. This is the problem statement जो आपको इन जनरल प्रॉब्लम आप गिवन होगी एग्जामिनेशन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, ठीक है ना. इन जनरल ये कंडीशंस पूछी जाती हैं और इसके बाद आपको बेस्ड ऑन द डेटा you will have to plot the vapor liquid equilibrium diagram. For this purpose you have to given about the relationship between the relative volatility or the direct data from the experiments may be given, and you have to find out the relation between the values of the y and x. Based on this y and x you will plot the equilibrium curve. सबसे पहले आप लोग जो हैं x और y के बीच में एक इक्विलिब्रियम कर्व को प्लॉट करते हैं. मैकाब-थेले डायग्राम में स्टेप्स में आपको f(xf) दिया है, dxw जो है आपसे पूछा गया है. आपने मटेरियल बैलेंस लगा करके दीज वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया. नाउ अब आपके पास जो है xd है, xw है, xf की वैल्यूज आपको पता है by applying the material balance and the given condition. Now with the help of the some experimental data or with the help of the relative volatility data you will plot this VLE curve. As you can see easily this is the VLE curve. ये कर्व आपको जो है कैसे गिवन है? with the help of the data. सबसे पहला पार्ट आप जो प्लॉट करते हैं मैकाब-थेले डायग्राम को तो आपका स्टेप होता है कि आप VLE कर्व को प्लॉट करिए. सबसे पहले आप जो है VLE कर्व को XY के डेटा को प्लॉट करिए. इसको प्लॉट करने के लिए आपको या तो डेटा गिवन होगा या आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी जिसकी हेल्प से आप XY डेटा को जनरेट करेंगे और इक्विलिब्रियम कर्व को इजीली प्लॉट करेंगे. आफ्टर प्लॉटिंग दिस you will apply the material balance. F is equal to D plus W and F into XF is equal to DXD plus WXW. After this you will find out the value of the W and XW. Then these values को आप जो है इस x एक्सिस पर जो है लोकेट कर देंगे. ये XD को डिनोट किया आपने, XF को किया और XW को किया. XF क्या है? कंपोजिशन ऑफ द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फीड. फीड में आपको ये कंपोनेंट इतने परसेंटेज गिवन है, यहां पर आपको ये चीज गिवन दी है और कहा गया कि इसके कंपोनेंट के फ्रैक्शन को बढ़ा करके डिस्टिलेट में आपको यहां तक जाना है. देन यू ऑन द बॉटम में आपका दिस इज द XW. XW is the composition of the more volatile component in the bottom. XF is the composition of the more volatile component at the feed. And XD is the composition of the more volatile component at the top. These are the conditions. इसको आप locate कर लेते हैं. This is the step. First step, plot the equilibrium curve with the help of data given x and y or with the help of the relative volatility value, and then applying the material balance and
locate the value of xd, xf and xw. These are the very basic steps and the basic step by step procedure. इस तरह से आप करेंगे तो आपको कभी किसी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम टू सॉल्विंग द यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम एनी. देन the next step is to draw the Q line equation. Q line equation जो आप फीड की ट्रे में मटेरियल बैलेंस को अप्लाई करके इक्वेशन को फाइंड आउट हम लोगों ने किया था, दैट विल बी द बेस्ड ऑन द Q कंडीशन पर आपकी y इज इक्वल टू Q अपॉन Q माइनस 1 इंटू एक्स माइनस की XF अपॉन Q माइनस 1. दिस इज द Q line equation or the feed line equation you can say. And अब आपका स्टेप होता है कि आप इस वाली लाइन को XF वाला पॉइंट्स देखें. ये लाइन आपकी XF XF से जाएगी. इसको आप पुट कर सकते हैं. when you put x is equal to XF, you will get y is equal to XF. Means this line will pass from the point XF comma XF. इस जगह से आप Q लाइन को प्लॉट करते हैं. ये जो y इक्वल टू x वाली लाइन है, y इक्वल टू x वाली लाइन को आपकी Q लाइन XF कॉमा XF पर जो जो है लाई करती है. फिर इस वाले पॉइंट से आप Q लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फीड. द फीड में बी द सबकूल्ड लिक्विड, मे बी द सैचुरेटेड लिक्विड, मे बी द सैचुरेटेड वेपर, मे बी द सुपरहीटेड वेपर. व्हेन इट विल बी द सैचुरेटेड लिक्विड, एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज द Q क्या होता है? Q आपका अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द फीड. HV माइनस HF डिवाइड बाई द HV माइनस HL. इस तरह से आप इसको रिपीट करते हैं. इट मीन्स Q enthalpy required to convert 1 mole of feed at given condition to saturated vapor divided by molar latent heat of vaporization. And depending upon the position of the feed, as you can see, then when the feed is a saturated liquid, जब feed आपकी saturated liquid है, then the value of the feed is the Q is equal to 1. आप इस Q is equal to 1 से plot करेंगे तो with the help of the tan theta you will draw the Q line equation. आप इस Q लाइन इक्वेशन को जो है जब आप ड्रॉ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप, इस स्लोप की हेल्प से आप जो है Q इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं. Q इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, देन यू विल गेट द स्लोप इंफिनिटी, देन द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. एट दिस 90 डिग्री फॉर दिस पोजिशन, theta is equal to 90 degree. Then you can easily draw this Q line. This is the feed line. And for the other condition, for the cold liquid, this may be this line, and the vapor, and for this the saturated vapor, when the value of the Q is 0, then you will get this. And you इस Q लाइन इक्वेशन को आप इस कर्व तक, इक्विलिब्रियम कर्व तक लेकर के जाते हैं. फर्स्ट स्टेप, विद द हेल्प ऑफ XY डेटा आपने इक्विलिब्रियम कर्व को प्लॉट किया. सेकेंड स्टेप, XF, XD, XW को लोकेट किया. इन द थर्ड स्टेप आप Q लाइन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं विद द गिवन कंडीशन ऑफ द Q. क्या फीड की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इस Q लाइन को जो है ड्रॉ करते हैं. आफ्टर दिस
the next step is, आपका नेक्स्ट स्टेप रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन को ड्रॉ करना होता है। रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन, जो कि हम लोग रेक्टिफाइंग सेक्शन पर मटेरियल बैलेंस लगा करके फाइंड आउट करते हैं। दिस इक्वेशन में बी द yn प्लस 1 इक्वल टू r अपॉन r प्लस 1 xn प्लस xd अपॉन r प्लस 1। यहां पर भी हम जब xn इक्वल टू xd पुट करेंगे, देन वी विल गेट yn प्लस 1 इक्वल टू xd। दैट मीन्स दिस लाइन passes from the xd comma xd। अब इस रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन को जहां पर फीड लाइन इक्विलिब्रियम कर्व को टच कर रही है, उस जगह से इस लाइन को जब हम पास करते हैं, दिस विल बी द पास करते हैं, यहां से हमको आपका कि इतना थीटा मिनिमम आपको मिलता है इस जगह पर, जो है इतने थीटा मिनिमम से को जो हमको मिल रहा है, इतना को कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं सकता है। इससे कम पे क्या होगा कि रेक्टिफाइंग सेक्शन की जो लाइन होगी आपके इस इक्विलिब्रियम कर्व से ऊपर चली जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर सेपरेशन हो सकता है। सेपरेशन आपका इस डायगोनल लाइन और इस इन्वेलप जो है, इसके बीच में ही सेपरेशन आपका पॉसिबल है। तो ये आपकी मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो आपकी रेक्टिफाइंग सेक्शन की एक्चुअल लाइन होगी, ऑपरेटिंग लाइन होगी, वो इससे जो है नीचे ही ड्रॉ कहीं पर होगी। तो अब आप क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्लक्स रेशियो। As you can see, this is the xd upon r minimum plus 1. With the help of this, you can find out the value of the r minimum. यहाँ से आप r minimum को find out कर लेते हैं। r minimum मतलब कि minimum reflex ratio, कि इतना रिफ्लेक्स हम लोग जो है आपके डिसीजन कॉलम में भेज रहे हैं, कम से कम इतना रिफ्लेक्स भेज रहे हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। अब इस मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो के बेसिस पर जो प्रैक्टिकल कंसीडरेशन होती हैं, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कंसीडरेशन वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो। एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल कंसीडरेशन 1.2 से 1.5 तक आर मिनिमम आपका होता है। अब इसकी हेल्प से आप लोग एक्चुअल इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज द एक्चुअल इंटरसेप्ट xd अपॉन r प्लस 1, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरसेप्ट xd ओवर r प्लस 1, अब रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन को इस xd पॉइंट से पास कर देते हैं, एंड यू विल गेट द एक्चुअल रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन। अगेन रिकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw the equilibrium curve and then apply the material balance and locate the xf, xd and xw. Then draw the q line equation with the help of the q line, which was obtained by applying the material balance on the feed tray, that is the y is equal to q upon q minus 1 into x minus a xf upon q minus 1, and depending upon the position of the quality of the feed, we will draw the q line equation. After this we will find out the minimum reflex ratio, and then we will get the actual reflex ratio, and with the help of this we will get the intercept of the actual rectifying section operating line, and we draw the actual rectifying section operating line. And after this
our next aim is to draw the stripping section operating line। इसके बाद हम लोग स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन को फाइंड आउट करते हैं। दिस स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिपिंग सेक्शन स्लोप और इंटरसेप्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली लाइन आपकी XW, XW से पास होकर के जाएगी। दिस इज द XW, XW। ये भी आप देख सकते हैं कि x=XW पुट करने पर आपको ये आपकी वैल्यू मिल जाती है। दूसरा तरीका, जहां से आपकी क्यू लाइन और ROL जा रही हैं, ये स्ट्रिपिंग सेक्शन की जो लाइन है उसके इंटरसेक्ट पॉइंट से ही आपकी पास होगी। तो आप इस वाली लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। आफ्टर दिस यू विल गेट द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम को डिजाइन करने के लिए हमको 3 लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है। फीड लाइन इक्वेशन, रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन एंड द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन। फीड लाइन को आपने ड्रॉ किया, देन विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्स रेशियो, intercept of the reflex ratio, or with the help of the slope of the ROL, we draw the rectifying section operating line। सिंपलेस्ट स्टेप में जहां पर फीड लाइन और रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसी जगह से आपकी स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन पास होती है। तो ये आपकी स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन आपकी हो गई। इसकी हेल्प से हमारा मैकाब थेरेट डायग्राम जो है आपकी बेसिक जो है प्रिपेयर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ स्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को स्टेजेस जो है फाइंड आउट करनी होती हैं। स्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए टॉप प्रोडक्ट से आप जो है इक्विलिब्रियम कर्व तक जाते हैं एंड देन गो टुवर्ड्स द ऑपरेटिंग लाइन। इक्विलिब्रियम कर्व और ऑपरेटिंग लाइन के बीच में नंबर ऑफ स्टेजेस को हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं। दिस वन इक्विलिब्रियम कर्व, देन वी विल गो टुवर्ड्स द ऑपरेटिंग लाइन एंड अगेन। यहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ स्टेजेस 4 मिल रही हैं। जो हमारे पास प्रैक्टिकल कंसीडरेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके पर हमको यहाँ पर 4 नंबर ऑफ स्टेजेस मिल रही हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइडियल स्टेजेस इन ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम इज 4। अब ये केमिकल इंजीनियर पर डिपेंड करता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम का अरेंजमेंट किस तरीके से रखना चाहता है। अगर जो है टोटल कंडेंसर आपका है और पार्शियल रिबॉयलर है, तो पार्शियल रिबॉयलर इज आल्सो एक्ट एज ए प्लेट। जब ये एक्ट एज ए प्लेट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम के लिए हमको नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं फिर जो है एक कम लगानी पड़ेंगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम के अंदर। तो हम कह देंगे दिस लास्ट वन इज द पार्शियल रिबॉयलर विच आल्सो एक्ट एज ए आइडियल स्टेज। क्योंकि आइडियल स्टेज के लिए हमको रिक्वायर्ड है कि जो वेपर और लिविंग स्ट्रीम्स जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम में हो और वेपर और लिक्विड वहां पे दोनों ही बने। एंड द टोटल कंडेंसर इज नॉट ए द act as a plate, partial condenser act as a plate, partial condenser act as a plate, but the total condenser and the total reboiler will not act as a plate, because to act as a plate it must satisfy the condition as the vapor and liquid leaving the stages are in the equilibrium position. And if we assume here as the total condenser and the partial reboiler, then the required number of ideal stages in the distribution column is the 3। तो यहाँ पर 3 number of ideal stages आपको required होंगी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर, यहाँ पे हम लोग बार बार आइडियल स्टेज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आइडियल स्टेज का मतलब है कि जहां पर वेपर और लिक्विड दोनों जो लिविंग स्टेज होती हैं आपकी ट्रे से, वो आपकी इक्विलिब्रियम पर होते हैं। दीज आर द इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। दिस इज द आइडियल स्टेज डेफिनेशन। एंड जब ये आइडियल स्टेज हमको मिल जाती है, आइडियल स्टेज मिलने के बाद, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइडियल स्टेजेस मिलने के बाद, हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल
एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेजेस को भी ट्रे एफिशिएंसी के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेज हम लोग जो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रेज मिली है उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमको एफिशिएंसी गिवन होगी। एफिशिएंसी को फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में, बट इन जनरल अगर आपको एफिशिएंसी ट्रे की गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम। देयरफॉर मैकआप-थेले इज ए very important graphical tool to find out the required number of ideal stages in a distribution column. Hopefully आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।